So hello everyone, good afternoon. I am Dr. Payal from Delhi NCR, and just let me tell you about Voices of Healthcare. So it is just a platform where healthcare professionals share their stories, insights, and expertise. So join us as we amplify the voices of healthcare professionals and which are shaping the future of healthcare. So let me just introduce our speaker, third speaker. She is Dr. Anubha Singrai. She is a senior physiotherapist, healthcare entrepreneur, and thought leader committed to advancing physiotherapy practice in India. With extensive clinical experience and strong focus on evidence based rehabilitation, she has contributed significantly to improving patient care and professional standards. She serves as the editor in chief of Physio Times, where she drives knowledge, sharing, and professional dialogue within the physiotherapy community. As the co founder of Remote Physios, she is also helping expand access to technology enabled rehabilitation. Known for her leadership, vision, and dedication to healthcare innovation, Dr. Nuba continues to inspire professionals while shaping the future of modern physiotherapy. And today she is going to address us about entrepreneurship and physiotherapy. So you can ask your queries in the session. So over to you, ma'am. Thank you so much. First and foremost, thank you, Payal, for this initiative because you people are the I would say the youngsters, the young group which is taking this initiative of spreading the word because there are people in all communities who are doing different work. I won't say very great work or something, but yes, different work, and that needs to reach out because that is the base for Physiotimes. Also, that is what we emphasize, that the rehab community should be connected globally and not limited to one or the other person. So thank you so much for inviting me as a guest today. I would love to, discuss and explore insights. Yes. Sir. So let's just start with my questions. So first of all, you should tell about Physio Times first. Like, what is it? Sure, sure. Yeah. So, see, Physio Times is a legacy. It started in 2009 with Mr. Mukesh Nayak and his wife, Dr. Bhumika. It started from Ahmedabad. Okay, so because there was no medium as such for communication amongst the physios or dialogue, so it started with that thought. And till 2018, it ran from Ahmedabad only. And after 10 years, it was on the verge of closing. Why? Because this whole mobile thing, internet thing has come up, and then the people were more inclined now towards reading things online and stuff like that. So at that time in 2019, we took it over. So we took over the whole magazine, and this we started the publication from Bhopal. So since 2019, I'm serving as the editor in chief for Physiotimes, and it's like around 6.5 years now, and we have published more than 95 editions till date. And I and my team has contributed to around 20, 35, 36 editions till now. So yeah, so basically what it contains is a communication dialogue in all the spectrums of physiotherapy. It's not limited to one thing. Clinicals, if we talk about, we try to cover all aspects, from orthopedic to neurology to the onco part to pediatrics to geriatrics. Plus, we have a lot of international authors, contributors, and for example, Dr. Stuart Potter, who has been the editor for Tidy's Physiotherapy, Professor Kareem Khan, sir, who has been a Mm. figure in sports physiotherapy, yeah, sports medicine. So we have a lot of authors who are genuinely investing in contributing to the community development, and people cannot read this online anywhere. It's not that matter that we publish. It has to be authentic. It has to be value added. It has to be innovative. That's how we communicate. So even the students can contribute in the students corner. We showcase the clinics and physios who are doing some amazing work in leaderships in this thing. So that is how we do. So we have print editions. We also have digital subscriptions. So the print editions goes from Jammu to Kerala, and from north to south, east to west in India, all of India. We ship it, we create it, we deliver it, and across the globe we have digital access. So people are getting digital readership from US, UK, and mainly from Dubai. That is where we are earning. So they also understand that Indian physiotherapy community is that strong. So that is what Physiotherapy time serves to serve. Okay. Ma'am, as we know that you are 17-year experienced. Yeah.
So my question to you is, if you had to choose one lesson from your 17-year journey that shaped you the most as an entrepreneur, what Hmm. would that be? Oh, well, that's a very reflective question because around 2 decades of working, yeah, I passed out in 2008 with my Okay. master's in cardiopulmonary physiotherapy. And then I started my journey with corporate hospitals, of course, in some academics because I love teaching. That is what I do still. So, yeah, so with academics, then I shifted to the corporate hospitals, did for 6, 7 years, and then finally we took over this. So, one thing, if you ask me now, I would say is consistency. That goes a long way, and that is the key to anything whatever you wish to do, rather than intensity of work, or rather than sudden bouts of motivational outburst that comes with entrepreneurs every now and then. Because आज का जो पूरा era है वो आइडियाज इनोवेशंस का है, तो होता ये है कि कई बार हमारे पास एक आइडिया आता है and we get very motivated to work on it, work for some Hmm. time, and then it surely and shortly dies, right? it doesn't work long. That is why the ideas die. तो कंसिस्टेंसी से अगर आप अपना गोल बनाते हैं और हर दिन एक अश्योर करते हैं that you take one step every day, whatever is the situation, है ना? कभी कभी सेल्स अच्छा है, कभी नहीं है, कभी आइडिया इज वर्किंग, कभी यू फाइंड प्रॉब्लम्स. हर चीज इतनी आसानी से नहीं होती. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऑफ कोर्स, बट देन इफ यू शो अप एवरी सिंगल डे विथ पेशेंस एंड परसिवरेंस, तो आप श्योरली अपनी जर्नी को ज्यादा अच्छे से लंबे तक ले जा पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे. सो आई वुड से कंसिस्टेंसी. True. I guess consistency is important in everything, like for content creation, एब्सोल्युटली. for patient and all, या for एब्सोल्युटली. learning. बिकॉज True. सी मोनोटनी सेट्स इन. हर दिन चाहे आप क्लिनिकल्स में हो, आपको वही काम करना है. आप एकेडमिक्स में है, ओवर द इयर्स आपको वही पढ़ाना है. और आपका Hmm. आइडिया है, उसमें भी आपको रोज कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता. ठीक है, कॉलेज में यू हैव टीचर्स टू मोटिवेट यू, बट while you start working on your own, you don't have anyone to motivate you every day. So you have to be your self motivation with consistency. हर दिन एक ट्राई करना ही है. So that is what I have learned over years. True. I guess patients are our motivation. Yeah. Yeah, clinicals में patients are your motivation, but then also अपने आप को self motivated रखने के लिए हार नहीं माननी है. Hmm. True. Okay, so another question for Physio Times. Yeah. So today, if a physiotherapist wants to start something like Physio Times, a platform, community, or initiative, where should they begin? I think सबसे पहले तो you should have clarity of thoughts कि आपको क्या करना है और क्यों करना है. The why and what, that is very importantly to be sorted. इसलिए नहीं करना है कुछ क्योंकि हर दूसरा इंसान वो कुछ कर रहा है, या फिर that is in trend or something like that. Okay, so अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, please do a bit of research or bit of brain storming करो. थोड़ा सोचो उसके बारे में कि क्यों करना है और क्या सच में करना चाहते हैं. अगले 10 साल के लिए कमिट हो सकते हैं कम से कम उससे, तो करिए. तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए. उसके बाद यू हैव टू बिल्ड योर ओन क्रेडिबिलिटी. ठीक है, क्रेडिबिलिटी से ट्रस्ट आता है. ओके, एंड देन अपना ऑडियंस बनाइए, कम्युनिटी बनाइए, चाहे पेशेंट्स हो, चाहे आपके सब्सक्राइबर्स हो, रीडर्स हो या व्यूअर्स हो. उसके बाद सेल्स और मोनेटाइजेशन वो सब बाद में आता है. तो आप कुछ भी इनिशिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट अपनी नेटवर्क में अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करना पड़ता है. उसके बाद थिंग्स गो ऑन. True. Okay, now, ma'am, please address us on Physicure. Yeah, What is so that? after PhysioTimes that we acquired in 2019, हमने 2020 में Physicure करके अपने clinic start किए, which is basically a chain of advanced physiotherapy clinics. तो we started with 4 clinics in Bhopal. उसके बाद हमने उसको थोड़ा expand किया in what would say daycare center as well, so that patient को जो बाहर से होते हैं, दूर के इलाकों से आते हैं, उनको भी एडमिट होकर फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट की सुविधा मिल सके. And then that expanded. So what we targeted was quality treatment. साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो कई बार मिसिंग होता है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, बिकॉज इतने सारा काम होता है. सो क्लिनिकल्स के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन इज एज इम्पोर्टेंट. तो वो हमने डेवलप किया. उसके बाद हमने अलग अलग किया. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दैट वाज डेलीगेशन ऑफ द वर्क्स.
क्योंकि आपको आपकी टीम आपको ही रिप्रेजेंट करती है Hmm. फिजिकल में। अगर मेरे पास एक टीम है फिजियोस की, तो चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, वो मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस पेशेंट मेरे साथ रखता है, क्योंकि इतने सालों से मैंने इस फील्ड में काम किया है, वो कॉन्फिडेंस पेशेंट को मेरे फिजियोस की टीम के साथ भी दिखाना पड़ेगा। तो उस पर True. वर्क किया और इसको डेवलप किया, एंड स्लोली विद टाइम आफ्टर 5 years वी पिवटेड इट नाउ टू रिमोट फिजियोस। तो अब हम क्लिनिक्स को, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपेक्स, जब भी आप नया Hmm. क्लिनिक सेट करते हैं तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होता है, Hmm. अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, रेंट्स एंड एवरीथिंग गोज ऑन। तो उसको आगे एक्सपैंड करने की जगह नाउ वी हैव पिवटेड टू रिमोट फिजियोस व्हिच इज अ हेल्थ टेक स्टार्टअप। यहाँ पे Okay. हम एड्रेस कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग किसी भी तरह से फिजियोथेरेपी तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, या तो वो एरियाज हैं जो, फॉर एग्जांपल मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल के Hmm. आसपास इफ आई गो फॉर 40 50 60 किलोमीटर्स, देयर आर पेशेंट्स, राइट। बहुत सारे हैं जिनका टीकेआर हुआ है या जिनको स्ट्रोक हुआ है, या वापस यहाँ से दे गो बैक, और वहां पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो दे दे जस्ट ट्राई टू मैनेज इट देमसेल्व्स, घर पे ही कुछ सीख कर करने लगते हैं, या फिर छोड़ देते हैं। So in that case, remote physios addresses that problem with our, हमने AR games में हम काम कर रहे हैं, that is augmented reality games, so that people can enjoy the exercises, क्योंकि कुछ टाइम के बाद exercises थोड़ी monotonous हो जाती हैं, boring हो जाती हैं, True. स्पेशली इन जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। अगर उनको हम बोलेंगे ना तो वो आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम दे वोंट डू इट, या कोई भी ले लीजिए। तो उसके लिए हमने उसको गेमिफाइड किया है। राइट नाउ वी हैव 50, यू कैन चेक आउट दिस स्लाइड एज वेल। 50 गेम्स हमने रिमोट फिजियोस में इंट्रोड्यूस किए हैं, जो शोल्डर मूवमेंट्स या बाकी ट्रंक मूवमेंट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। इट्स वेरी इजी टू प्ले। ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन IoT इनेबल्ड फिजियोथेरेपी डिवाइसेस। इनको हम वर्क कर रहे हैं सो दैट वो पेशेंट के घर पे पहुंच सके और फिजियो वर्चुअल सेशन के थ्रू उनको मॉनिटर और हेल्प कर सके। फॉर Okay. एग्जाम्पल, अभी क्या होता है कि कोविड के बाद से टेली फिजियोथेरेपी ने तो काफी डेवलप किया है ना, लोगों को Hmm. समझ में आ गया कि टेली फिजियोथेरेपी हो सकती है। पहले तो यही नहीं समझ में आता था कि Hmm. टेली पे फिजियोथेरेपी कैसे हो सकती है। बट नाउ प्रॉब्लम कब आता है, जब पेशेंट को पेन है। अब Hmm. सेशंस में आपने एक्सरसाइजेस सिखाई, गाइड किया उसको, पोस्चर करेक्शन एंड ऑल दैट इज डन, बट जब दर्द होगा तो पेशेंट फिर कुछ भी नहीं करेगा। दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर। Hmm. फिर वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाता है, या फिर वो आपके साथ कंप्लाई नहीं करता। सो विद IoT enabled devices that we are working upon, we are working on ultrasound, TENS, IFT, muscle stimulator, and also biofeedback, EMG। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम मोडालिटी को पेशेंट के घर पे पहुंचा रहे हैं तो ना उसको क्लिनिक तक आने की जरूरत है, ना आपको उनके पास जाने की जरूरत है। सो वी आर नॉट सेइंग कि हम क्लिनिक्स को हटा रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग, Hmm. बट वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग क्लिनिक्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुंच सकते प्रैक्टिकली। रूरल पॉपुलेशन देख लीजिए आप, या फिर इवन इन मेट्रोज में आप मानिए कि आपका पेशेंट अगर 20 किलोमीटर से आ रहा है तो उसको 2 घंटे तो आने में लगेंगे, Hmm. राइट। बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई। So you have to understand कि this is the need of the hour. So we pivoted it to remote physio, जिसके लिए हमें काफी सारे अभी सपोर्ट मिला है इंक्यूबेटर्स का और बाकी, and we'll slowly this year we'll be launching products as well. Best of luck for that, ma'am. Thank you. So, for next question, many physiotherapists still feel unsure about digital or technology-based practice. So, what mindset change do you think is most important for them? या सो लाइक इज सेड ना, कोविड के बाद चेंज आया तो लोगों ने Hmm. अडेप्ट किया। सिर्फ इसमें नहीं, अगर आप बात करेंगे तो किसी भी चीज में, वुड हैव बी इमेजिन्ड कि 3 years पहले हमारी दादी नानी डिजिटली शॉपिंग कर सकती थी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा से? नो। या हमारी हाउस हेल्प, हमारी मेड्स जीपे, फोन पे से पैसे ले सकती थी? नहीं। सो दैट ऑल हैज इवॉल्व्ड थ्रू डिजिटल थिंग्स ओनली। सो दीज आर टूल्स। तो हमको पहले तो अपने मन से ये फियर निकालना है कि कोई भी तरीके का टेक्नोलॉजी फिजियोथेरापिस्ट को रिप्लेस कर सकती है एज अ प्रोफेशन। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोर तो वही है, क्लिनिकल रीजनिंग एंड प्लानिंग, जो कि हमारे पास ही है। दैट्स आवर सुपर पावर्स। सो नाउ वी हैव टू लर्न टू यूज द टूल्स टू ईज आवर वर्क। For example, documentation. There are tools now available for documentation, जो आपके क्लिनिक मैनेजमेंट CMS है, क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आपके डेटा के लिए CRM है। So that will help you, lessen a lot of your load, rather than asking one person to keep on entering. That also gets lost after a while. So that can all be done. So we have to understand that these technology based things are helping us
as a as a supplement, rather than they won't replace us. वो तो कोर तो वही है क्लिनिकल, जितना अच्छा हम रीजनिंग Hmm. रखेंगे पावर हमारे पास ही रहेगा, सो जो अडेप्ट करेंगे वो लीड करेंगे। True. मैम, जब आपका फर्स्ट क्लिनिक खुला था तो व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड एट दैट टाइम? क्लिनिक खुलता है तो क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें लोगों को समझाना पड़ता है, मिथ को सॉल्व करना पड़ता है ना। ट्रू। इट्स नॉट जस्ट अनदर क्लिनिक, वी हैव टू, अगर हम बहुत सारी चीजों पे वर्क कर रहे हैं लाइक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, वर्क फ्लोज, द स्टाफ चॉइस, तो वो सब चीजों को हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ता है कि व्हाई वी आर डिफरेंट। इवन अगर मैं बात करूं कि ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट तो बिकॉज सी इन अ लेमन्स माइंड इट इज ऑल द सेम। So हम्म। challenge पहला यही आता है कि you have to make them understand, especially in the tier 2 cities and tier 3 cities, ट्रू। where people understand. I mean, they are not able to make out the difference much. So even in metros, तो ठीक है, उनको समझ में आता है कि why it is innovative rehab, why it is the specialized one. पर तो वो ही चैलेंज पहले आता था कि आप लोगों को जागरूक करो, बताओ कि हम डिफरेंट कैसे हैं। उसके लिए वी ऑलवेज डू कंडक्ट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस थिंग्स। Saturdays को we take an hour when we ask people to just come and talk to us about their conditions, one or the other। frozen shoulder है तो उसके बारे में बात करें, उसके कोई चार्जेस नहीं है, उसमें आप अपनी मिथ सॉल्व कर सकते हैं। इट गोज लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ। जो हमारे पुराने पेशेंट्स हैं उनको दूसरे पेशेंट्स को बताना कि सही क्या है और गलत क्या है, डोंट वेस्ट टाइम। तो चैलेंज वाज मेनली मिथ बस्टिंग। या ट्रू। एंड मैम, व्हाट अबाउट वो पेशेंट्स जिनको लगता है कि मैनुअल थेरेपी से ही वो ठीक होंगे, लाइक फिजियो कम्स एंड टच देम देन ओनली दे कैन हील, तो उन केसेस में वर्चुअल रिहैब में हम कैसे उन्हें मतलब वो करें? हाँ, तो इसके लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको पूरी तरह से हटा देने हैं क्लिनिक्स, राइट। जो जो कर सकते हैं मोस्ट मोर वेलकम। लेकिन वो कम्युनिटी जो नहीं आ सकती, आप अगर देखें तो कितने सारे बुजुर्ग हैं हर घर में, देर आर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हु नीड रिहेबिलिटेशन एज अ सपोर्ट, इवन नॉट ऑफ एज अ ट्रीटमेंट। जिनको नी प्रॉब्लम्स नहीं है, बैक प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी उनको सुपरविजन की जरूरत है, उनको गाइडेंस की जरूरत है, एक फिजियोथेरापिस्ट के कंसल्टेशन की जरूरत है, rather than कि वो कुछ they fall and they injure themselves and then they start। तो कितने लोग आ पाते हैं? If I talk about my clinical practice, not more than 30-40%। ट्रू। 50% जो लोग अवेयर हैं या उनके बच्चे अवेयर हैं कि नहीं, दे नीड रिहैब ऑन अ रेगुलर बेसिस, नॉट ओनली मेडिसिन, वो ही लेके आते हैं। अदर देन दैट दे आर नॉट डन। तो उनके लिए वर्चुअल रिहैब इज द ओनली ऑप्शन व्हेन दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन देयर किड्स टू टेक देम टू क्लिनिक एवरी डे, ओके, या अदर थिंग्स के लिए उनको डिपेंडेंस नहीं होगी। आपको सिर्फ क्लिक करना है एंड वी आर हियर फॉर योर हेल्प। ओके। So, ma'am, do you think entrepreneurship in physiotherapy is becoming a necessity now, not just an option? Yes, yes, because see, this is the best phase for entrepreneurship। हमने जब start किया था 15-17 years पहले, तब concept was very different and you had to देखना पड़ता था कि कहाँ से हमें mentoring मिलेगी, guidance मिलेगी and everything। आज इतने सारे mentors are available, इतने सारे startups के लिए government is doing a lot for them, from funds, grants to mentorship to incubation, everything is available। So rehabilitation भी उससे छूटना नहीं चाहिए, फिजियोथेरेपी भी छूटनी नहीं चाहिए। पहले दो ही ऑप्शंस होते थे, join a clinic or join academics, right? Yeah, But true. now if a person, see, हम जानते हैं academics में there are limited vacancies, not everybody out of 50-100 batch can join academics, और clinicals और hospitals में भी है। So either you can open your own clinic on day one, or if you are interested to explore the world, you can now enter into a lot of more options, right? Networking है, अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के मेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग support for the classes, academics, the electrotherapy part and this and that। तो ये सब वही है, आइडियाज हैं जो आप एक्सप्लोर करो, समझो कि व्हाट इज द नीड ऑफ द डे। अभी भी ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं in some areas which are not able to provide that sort of support or that sort of True. teaching and guidance। तो वो स्टूडेंट्स का एक लूप होल है कि दे आर नॉट इन दैट फोर फ्रंट। तो जब वो पास आउट होंगे तो दे विल हैव टू फेस चैलेंजेस। सो दिस इज वन ऑफ द आइडियाज। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सीधे कंपनी या बिजनेस ही बनाना है, आपको ट्रस्ट बनाना है, आपको बिलीफ बनाना है, और उस बिलीफ के साथ साथ हमको ग्रो करना है। तो दिस इज द टाइम, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज इन एवरीवेयर, जस्ट आइडिया एंड एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। Okay. And ma'am, is there any qualification to start to be an entrepreneur? Like कि BPT के बाद या MPT के बाद या PhD के बाद ही करना है, ऐसा कुछ
है मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और हम एमबीए नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कई लोग करते हैं, एंड हेल्थ केयर में भी एमबीए अलग से करते हैं, बट फॉर इफ यू वांट टू रियली एक्सप्लोर इन दिस फील्ड, तो आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी यू हैव हम्म, टू कीप योर आईज एंड ईयर ओपन फर्स्ट थिंग, देन यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज हम्म, in a startup or in a company, initially क्या होता है कि we are multitasking, we have to be multitasking, there is no true. other option. आपको हम्म, क्लिनिकल पेशेंट देखना भी है, तो साथ ही साथ यू हैव टू नो अबाउट द फाइनेंसेस, यू हैव टू नो हम्म, अबाउट द मार्केटिंग पार्ट, सेल्स पार्ट, सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके लिए अभी इफ यू रियली वांट टू वर्क इन दिस फील्ड, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जहाँ पे आप हम्म, एनरोल कर सकते हो, यू कैन लर्न, यू कैन नेटवर्क। Like for example, I was a part of IIM Bangalore हम्म, 2 years back in a cohort, जो women's led cohort होता है, जिसमें से all over India से they invite around 70 women founders, और वहाँ पे they conduct lectures, of course IIM में है तो उनके professors lectures लेते हैं, और on the all the aspects from marketing to business specs to understanding finances and everything. So ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं, उसके लिए आपको opportunities को grab करना है, and you have to stay alert, that's it. ओके। एंड व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स मैम? लाइक कैसे आइडिया मिलेगा एक बिगनर को? सी शुरुआत में तो अगर आपको अभी तो आप देखिए अलग अलग चीजें होती हैं, इफ यू वांट टू रियली फॉर्म अ कंपनी, तो फिर उसके हिसाब से आपको गाइडेंस लेना पड़ता है, कंपनी बनाना कैसे है, रजिस्ट्रेशंस कैसे होते हैं, गवर्नमेंट हम्म, की ग्रांट्स अवेलेबल होती हैं, पर वो कैसे अवेलेबल होंगी, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड इन डीपीआईआईटी, तो ये सब चीजें स्टार्टिंग से नहीं होती। आई वुड एडवाइस कि फ्रेश आउट ऑफ बीपीटी वन शुड जस्ट हम्म, जंप इन, पहले कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए, है ना, दैट हम्म, विल हेल्प टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ साथ नेटवर्क करिए, दूसरों को देखिए, जो कंपनीज जो रिलेटेड थिंग्स हैं हो रही हैं, उनसे फिर हम डिस्कस करिए, बात करिए, एंड देन यू हैव टू फॉर्म अ टीम। उस टीम के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर टीम नहीं बना सकते हैं शुरुआत में, तो आप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, दे कैन हम्म, यू कैन एक्सप्लोर सिनर्जीज। इट्स नॉट दैट कि एक पर्सन को सब कुछ करना ही अकेले ही पड़ेगा, दे कैन ऑलवेज लुक फॉर नेटवर्क एंड सिनर्जीज, बी ओपन टू दैट। ओके। एंड कैन यू टेल अबाउट दिस समथिंग? या फिर व्हेन वी वर वर्किंग ऑन फिजिक्योर, तो हमें एक्सपेंशन ग्रांट मिली थी। सो एज आई सेड कि देयर आर लॉट ऑफ ग्रांट्स अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट आज के टाइम में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कहाँ कैसे उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको फुलफिल कर रही हैं, आप उसको कर रहे हो या नहीं, अप्लाई करना है, मेक द बेस्ट पार्ट आउट, एंड देन इट विल श्योरली हेल्प। ओके। या सो you मैम can माय remote नेक्स्ट physio slide क्वेश्चन। also if you want, no, so I'll just the remote physio slide. Yeah, yes. So this is how we are working on games. ओके, ग्रेट। सो कैसा इसका रिजल्ट है मैम? हाँ, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी आर गिविंग सम फ्री कूपन्स ऑल्सो, ताकि लोग उसको एड्रेस कर पाए, इसको एक्सपीरियंस कर पाए, और फिर अपने पेशेंट्स को भी बताएं। सो या anybody who's interested can surely DM us on that. We would love to share coupons with them. Okay, we will share it on group also. Yeah, please visit our website, that's remotephysios.com. Yeah, you'll get a lot of details. Okay. Yeah. So my next question is, if someone is clinically very strong but has zero business knowledge, should they still start or should they first learn certain skills? जैसे just said कि don't just start, है ना, Hmm. prepared. It's better to just be a little more prepared, like आप एग्जाम्स के लिए करते थे, तो उसके लिए अच्छा, जैसे LinkedIn is a very good platform. If you Hmm. keep on looking there, you will get what all is available, where you can form your team, जहाँ पे आपके like minded लोग हो सकते हैं, जो एक साथ सोच रहे हैं, कुछ एक साथ करना चाहते हैं, वो ग्रुप इन कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक लर्निंग चलती ही रहती है आज के टाइम पे, इट्स ऑल अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स ऑल अवेलेबल। सो आप सीखिए, थोड़ा सा सुनिए, समझिए लोगों को, देन इफ यू फील कि यस दिस इज माय this is for I ultimately what I want to do, then you can go for the further process, thoda sa company, because you will need assistance in every step. This is what is not taught in physiotherapy, right? हम तो क्लिनिकल से सिखाते हैं, लेकिन अब कैसे हमको कंपनी बनानी है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे आगे बढ़ना है, that you need to learn from the people who are already doing it, and I don't think they would have any problems in this kind, क्योंकि हर चीज कंपटीशन नहीं होती है, साथ में मिलकर भी हम आगे ग्रो कर सकते हैं। True. So, is there any 5 skills that a person should have to start their startup related to physiotherapy? सिर्फ स्किल्स को तो डेवलप किया जा सकता है। आई वुड से फर्स्ट थिंग इज नेटवर्किंग,
एंड कम्युनिकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अपने बारे में जो आप कर रहे हैं वो आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तो लोग आपके बारे में एक इमेज अपने आप बनाने लगेंगे, और वो जो इमेज है वही आगे जाकर ब्रांडिंग का काम करती है फॉर योर कंपनी और फॉर यू, एंड दैट इज योर रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड विद फिजिक्योर, पीपल न्यू फ्रॉम फार डिस्टेंट कि हम क्या करते हैं, फिजिक्योर में कैसे होता है, ऑल्दो दे आर नॉट एट भोपाल, बट फिर भी ऐसे ही रिमोट फिजियोस में हम जो कर रहे हैं वो हम दिखाते हैं, और जो दिखाते हैं वही हमारी ब्रांड इमेज बनती है, वही हमारा रिकॉग्निशन बनता है। तो आपकी स्किल्स जरूरी है, स्किल्स चाहे वो क्लिनिकल स्किल्स हो या मैनेजमेंट स्किल्स हो, राइट। मैनेजमेंट मतलब आपको टीम मैनेज करनी पड़ेगी, तो टीम मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स ये जरूरी है। कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से जब कम्युनिकेट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप अपने जोन में बैठ के, अपने कुएं में बैठ के नहीं कर सकते। आपको लोगों से, जैसे फॉर एग्जांपल यू आई टेक ना, आपने ये इनिशिएटिव लिया, यू हैव कम्युनिकेटेड विद पीपल, पीपल हैव रिस्पोंडेड, एंड सो इट इज नाउ गोइंग ऑन इट्स लाइफ। Yeah. Rather than that, you would have thought and just plan and not reach out to anyone. So networking, communication, yeah, and building your brand, that's branding. Branding का मतलब सिर्फ पोस्टर लगाना नहीं है कि this is me, this is me, is what sharing on a very regular, consistent level. If on my LinkedIn I have more than 10,000 people connected with me, it's only because I'm very consistent in my efforts, and that's what reciprocates with them. True. So, for someone who feels confused or overwhelmed, how can they identify which entrepreneurship idea is right for them? देखिए, आइडिया तो रोज आते हैं, है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि आइडिया की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उसके लिए एक्शन नहीं लिया जाता। एन आइडिया इज जस्ट अ थॉट, if you don't take the proper action, and then only it becomes an execution is so much important. तो सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है which is pinching you repeatedly. If you think of a problem and you forget it the next day, it's not what you really need to work on. बट हाँ, कई बार ऐसा होता है, इन जनरल भी हमको लगता है ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होता तो अच्छा होता, and that if that thought is lingering with you for a longer period and you really want to give it a thought and look who is working in that direction and all, तो पहले तो वो है आइडेंटिफाई करना your area of interest or problem that you need to work upon. Second is it your strength? कई बार ऐसी चीज लगेगी हमको जो गलत है, सही कर सकते हैं, बट हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, सो वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, क्या आप इसमें काम कर सकते हैं, इफ इट इज असाइन टू यू। थर्ड थिंग, पैशन। स्ट्रेंथ और पैशन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इफ माई स्ट्रेंथ इज नेटवर्किंग and my passion is same, then it's good. If not, तो दोनों का जो mix होता है ना, in I will say क्या बोलते हैं इसको, if it strikes together, the problem that you have identified, your strength and your passion, it all comes together, तो वो आपके लिए सही है। Okay. Right. And while building a team, what is more important, skill, attitude, or shared vision? Shared vision. बिकॉज स्किल, जैसे हमने कहा, अलग अलग स्किल्स हो सकती है सबकी, है ना। किसी की स्किल हार्डवेयर में है ज्यादा, द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग इन अ प्रोडक्ट और समथिंग। किसी की स्किल दूसरी चीज में है, किसी की स्किल बात करने में, किसी की स्किल क्लिनिकल्स में है, दैट कैन बी ट्रेन्ड ओवर टाइम, बट द विजन हैज टू बी शेयर्ड। अगर आपकी टीम आपका विजन ही शेयर नहीं कर पा रही है, सो लॉन्ग रन में वो साथ नहीं दे पाएगी। क्योंकि अगर मेरा विजन है कि मैं अगले 5 साल इस पे काम करती रहूंगी और मुझे इतने लोगों तक पहुंचना है, बट द अदर पर्सन मी नीड्स की 6 महीने में रिजल्ट मिलना चाहिए, it will last for long, right? So you should have a combined vision and also give them that authority कि team building में उनका vision की value हो, उनकी उसकी भी importance हो, and from time to time you discuss with your teammates where are we going, and take a pause and don't be directly कि मैंने जो सोचा वही ठीक है। हो सकता है कहीं पे हमको जो सही दिखता है वो नहीं होता, so give them that importance and value as well. True. So many physiotherapists feel marketing is uncomfortable or too business-like. So how can they market themselves ethically and confidently? Yeah, that is with all medical professionals. It's not limited to us, it's with any doctor, anybody. But then see, there's something called as ethical marketing, right? Okay. We don't say that we are good because the others are bad. That's wrong, right? We say we are good because we do this. These are our goals, these are our strengths, these are our value propositions. So that is what ethical marketing refers to. It has to be patient centric, यानी कि जैसे हम आप लोग अपने पेशेंट्स देखते हैं, उन पेशेंट्स
जो आपके पेशेंट्स आपके बारे में बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो True. अपने बारे में बोलते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी अपने बारे में अच्छा ही बोलते हैं, कोई बुरा नहीं बोलता, लेकिन पेशेंट आपके बारे में अगर बोल रहा है कि इफ आई एम बेटर बिकॉज आई गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर पायल, देन इट्स डिफरेंट. So Hmm. always value that, and we have always Yeah. made it a point that we say कि ma'am please if you can share your feedbacks for us whatever it is, Yeah. and we would like to record it, and we would just like to share so that others who are misguided or who are confused can get an idea for it. So we keep on showcasing those things. तो ये चीज बहुत फायदा करती है, इस तरह से अपने आप को आप मार्केट भी कर सकते हैं, Hmm. और आप गलत नहीं है क्योंकि आपने जो किया उसका रिजल्ट है, एंड व्हेन द रिजल्ट Hmm. स्पीक्स everything is there. Exactly. I also do this, ma'am. Yeah, I yeah, also do feedbacks because it's kind of motivation also. कि और absolutely. अच्छा करना है. हाँ, और वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है. True. Yeah, और पता भी चलता है कि क्या लैक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. yeah, sure, genuine feedback वो बहुत जरूरी है. Yes. So, ma'am, in your experience, what is the one habit that helps someone move from idea to execution, apart from consistency? एक्शन, एक्शन तो करो. सिर्फ आइडिया लेने से तो कुछ नहीं होगा ना. आइडिया आया है, ठीक है, मुझे आज ये करना है, मुझे वो करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजियो टाइम्स में भी हम लोग कुछ ना कुछ रोज सोचते ही रहते हैं. Hmm. ठीक है, if I think about collaborating with colleges for certain things, for their annual this thing, what they have conferences or events, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. So action True. is so important. आपके पास आइडिया है और एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसका एक ही तरीका होता है, act. Many times I get that response, this response from people for my team, that I Hmm. haven't seen a prompter response. आपने पर्सन ने कुछ पूछा है, make it a point that you have to address that, irrespective of, many a time people are occupied, obviously everybody is occupied, but then if you take it as a priority it will go a longer way, rather than I'll finish first this and this and this and then I will come to that, and tab tak will gets lost. So Hmm. prompt action is the key in any of the things that you do. You're talking with your patients, you're talking with your readers, you're talking with your, if they're asking, please make it a priority to address them before your needs. Hmm. Okay. Yeah. So, ma'am, can you differentiate between idea versus execution? I have a whole post on LinkedIn. If you can, I'll share that link. I have read given a whole post for that. See, वही उद्देश्य कहने का ये है कि हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ आइडिया आज के टाइम में है, because there Hmm. this is the era of it, right? Yeah. देन डिफ्रेंसिएशन आता है जब हम उस पे कंसिस्टेंटली रहते हैं कि नहीं, हमको इसको किसी आकार तक पहुंचाना है, हमको इसको कहीं ना कहीं लेके जाना है. उसके लिए यू हैव टू स्ट्रक्चर अ प्रोसेस. पूरा स्ट्रक्चर बनाना भी जरूरी होता है, सिर्फ मेंटली नहीं, लिखकर भी, फिजिकली भी, कि व्हाट यू विल नीड, आपको क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंड व्हाट इज लिमिटिंग यू, वो हमको स्ट्रक्चर वाइज बनाना पड़ता है, तभी आप Hmm. पहुंच पाएंगे. एवरीबडी फील्स कि हमको इसको करना है, पर कैसे करना है ना. Methodology, like in Yes, research. absolutely, the whole flow chart, the whole Mhm. thing will help you out. Okay. And ma'am, why entrepreneurship is important? Why can't we just do a job and Because sit? it gives you wings. What? Gives It us gives what? you wings to fly. The whole Okay. sky is yours, right? Because जब भी Hmm. आप कुछ करते हैं, जॉब है, तो there are limitations. You cannot do what you feel like. For True. example, there were physios in my time also who don't like ICU visits, right? But if you're on a job, you have to. You know, there's a Hmm. rotation or there's something or the other. You cannot say, I don't like it, I don't want it, I won't do it, right? But in when you to choose a path different, like an entrepreneurship, so what happens is you choose what you like, Hmm. and that like and passion का जो mixture है ना, उससे आपको लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हो. उसको आपको Hmm. ये नहीं लगेगा कि आप कुछ सालों से वही कर रहे हो, या हफ्तों से कर रहे हो, या आप सुबह शाम रात भी कर रहे हो, आप छुट्टियों पे भी कर रहे हो, क्योंकि यू लाइक इट. तो entrepreneurship gives you that wing to fly in the sky, rather than being limited to what you're expected to do. Okay. So, ma'am, can you give some ideas for entrepreneurship in physiotherapy?
Yeah, there can be many things like I said कि कई लोग आजकल mentors की तरह काम कर रहे हैं for students. तो एक प्लेटफॉर्म होता है, आप जो कर रहे हैं दिस इज वन थिंग कि आपने कोलैबोरेट करा है लोगों के साथ और उसको आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं. आप प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, इनोवेशंस में जा सकते हैं, जैसे हमने डिसाइड किया कि हम AR गेम्स के साथ करना कुछ करना चाहते हैं, है ना, जो इजीली कर सके लोग बिना किसी हाई कैपेक्स के. आपको VR के लिए एक सेट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ लोगों को बताना है दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क. इस टाइप से हो गया. आप अपने क्लिनिक को ऐसे लेवल तक ले जा सकते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेट. बेसिकली ये है कि आपको एक वर्क फ्लो बनाना है. जब भी आप बात करते हैं वर्क फ्लो बनाइए किसी भी चीज में, सब चीजों को स्ट्रक्चर्ड करिए, सिस्टम्स को स्ट्रक्चर्ड करिए, डेलीगेट करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर टीममेट्स, तो वो आपको ही रिकॉग्नाइज करेंगे. अगर आप ही सारा काम करते रहेंगे तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहते. आपको डेलीगेट करना है सभी लोगों को कि कौन क्या कैसे करेगा ताकि रिजल्ट अच्छा हो. तो वहां पे होता है. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. और भी बहुत सारे इनोवेशंस हैं आजकल जो हम देख रहे हैं लोग कर रहे हैं. जैसे हमने चेन ऑफ क्लिनिक से बात करी थी, यू कैन रेगुलेट दैट एज वेल. तो ये these are some of the examples that we are seeing at the moment. They can be n number of things. Just think how we can do, मतलब क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे. हो गया innovation. Okay. And ma'am, according to you, what is the best time? Yeah. Time for? Time to start something, to build something. Best time is now. हमेशा बेस्ट टाइम नाउ ही होता है. अगर हम टाइम का मुहूर्त निकालने का सोचेंगे तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि कल तक द आइडियाज विल चेंज. Right? You will see something different and you will think, okay, that doesn't work. Let me think about this. So if you really are headstrong about something, start it now. Okay. And ma'am, any strategies you want to mention? स्ट्रैटेजीज पहली तो यही है, टीम बिल्ड करनी पड़ती है. उसके लिए आपको किसी को जरूरी नहीं ऑन रोल ही रखा जाए. अब देखिए, पहले देखते रहिए, जैसे आपने 3-4 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया, ऐसे ही आपको देखते रहना. स्ट्रैटेजीज, गेट द लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर, डिस्कस व्हाट यू पीपल वांट टू डू टुगेदर. और जब आप सोच लेंगे कहीं पहुंचेंगे तो फिर उसको आउटलाइन करिए स्ट्रक्चर करके. ये फ्लो चार्ट क्या होगा, कौन क्या संभालेगा, कौन कैसे करेगा, किसको कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, सो दैट वी आर नॉट ऑन अ रॉन्ग पाथ. बात करिए अपने मेंटर्स से, अपने टीचर्स से, अपने जो भी लोग हैं आपके नेटवर्क में जो इससे रिलेटेड आपको हेल्प कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से इवन, उनसे बात करिए. इट विल हेल्प यू श्योरली. And ma'am, how to manage money in entrepreneurship? इट्स नॉट profit loss and all. नहीं, कई बार होता है कि हम जब भी सोचते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप, वी अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट फंडिंग एंड जब पैसा मिलेगा तो करेंगे. नहीं, हर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज हाई कैपेक्स वाला नहीं होता. इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग प्रोडक्ट तो ठीक है, उसमें यू नीड मनी टू बिल्ड इन ऑल दैट, बट नॉट इन एवरीथिंग. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो नेटवर्किंग से हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो ग्रुपिंग से ही हो सकती हैं. अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हैं, यानी आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन इनिशियली. आप 3-4 साल 5 साल ट्राई करिए अपने मनी से, रादर देन किसी और का लेके उसको रिस्क में डालना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज दैट कम विद दैट. एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू फील कि यू कैन स्केल, देन यू कैन. तो हमेशा पहले आइडिया वो लेके आइए जो आप कम से कम बजट में एग्जीक्यूट कर सके, जस्ट टू चेक योर एग्जीक्यूशन, एंड देन गो फॉर अ फर्दर स्टेप. Okay. So if anybody wants to ask something, you can raise your hand. You can always ask, connect with me on my LinkedIn profile and surely ask all your questions. You're most welcome. Please visit Physiotime's official website as well. Okay, so you will get an idea. If you wish to submit a write-up, if you wish to, explore more, you're most more than welcome. Okay. So, ma'am, my last question is, if you could go back and advise yourself 17 years ago, what would you do differently? I think I would have started earlier. है ना. और कुछ नहीं, बस होता वैसे ही, बट ये है कि शायद वो टाइम पे आई वुड हैव बीन मोर confident about the thing I really want to do, and would have started much earlier. Because when I see nowadays the entrepreneurs, they are very young, they're just pass out graduates, and they are very highly motivated to do things. But we obviously started in that phase when we have already experienced a lot of things here and there. So शायद जल्दी start करा होता. Okay. When you started, ma'am? We started in 2019, जो हमने फिजियोटाइम से स्टार्ट किया फुल टाइम. आपका BPT MPT सब हो चुका था? 2008 में मैंने स्टार्ट किया.
अच्छा, ओके, with clinicals and academics and all of that stuff. और my entrepreneurship journey 19 में शुरू हुई, so exactly 10 years we worked in that learning ओके। piece. एंड एनी सजेशंस फॉर अस लाइक बडिंग फिजियोस आल्सो जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सीखो। सबसे पहले तो 3 साल तक तो जस्ट लर्न फ्रॉम एवरी वन अराउंड यू, ट्रू। राइट? लाइक व्हेन आई वर्कड इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, हमारे जो सर्जन्स होते थे या जो भी होते थे, डॉक्टर्स थे, सबसे सीखिए। बिल्कुल बिना उसके नर्सिंग स्टाफ है, जो भी है, एक्सवाइटिक द मार्केटिंग पीपल, उन सब से हमको सीखना है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स आपके अंदर ऐड हो जाएंगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा वो एकदम डिफरेंट होगा। ही इज सेइंग आप बोल रहे थे कि आप डिजिटली पेशेंट को अटेंड करते हो। या सो व्हाट इज योर क्वेश्चन आयुष? मैम यस प्लीज। मैम आप बोल रहे थे कि आप डिजिटली अपना पेशेंट अटेंड कर रहे हैं, स्पेशली रूरल एरिया से। राइट। सो मैम मैं ये पूछ रहा था कि उनको हाउ वाज योर डीलिंग विद देम, मतलब फीस स्ट्रक्चर चेंज करते हैं आप या फिर वही फीस स्ट्रक्चर रहता है, कैसे? सी फी स्ट्रक्चर तो टोटली डिपेंड करता है, हमारा जो इस पे रहता है कि पेशेंट की नीड और कैपेसिटी दोनों चीजें हम मैच करते हैं। वी डोंट हैव अ वेरी हार्ड एंड फास्ट थिंग। क्यों? क्योंकि जिनके पास सुविधा ही नहीं है, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है कि दे कैन ऑलवेज गो फॉर अ डेडिकेटेड बजट ओनली, सो हम उसके हिसाब से ही कस्टमाइज easy plans देते हैं उनको। Also we have multiple options, like they can pay per session or they can pay in small packages। और लॉन्ग टर्म है तो हम उन्हें गाइडेंस देकर फिर बोलते हैं कि आप खुद करें और हमसे वीकली लाइक ट्वाइस कनेक्ट हो जाएं, इस टाइप से। ठीक है। अगर कोई स्ट्रोक पेशेंट है तो उसके फैमिली मेंबर्स को हम ट्रेन करते हैं इन वन सेशन, और बाकी उनको हम बोलते हैं कि इसको आप खुद हैंडल करें, टीचिंग देम। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो फीस स्ट्रक्चर हमारा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बाकी हाँ, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट कंज्यूमर के पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट सेल्स का जो टिप है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं जाएंगे तो पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड। जैसे आप मेट्रोज का जो चार्जेस है वो रूरल के चार्जेस शायद सेम ना हो पाए, ऐसा हो सकता है। सो दैट्स ओके। ओके मैम। थैंक यू। मैम एक और क्वेश्चन था कि मतलब रूरल एरिया में स्पेशली लैक ऑफ अवेयरनेस है राइट। रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी, तो उनको डील करने में थोड़ा सा मुश्किल आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो चैलेंज आता है कि आप जिनको चैलेंज आता है। आप वो बता रहे हैं, जिनको पता है ऑलरेडी, उनको बताना में तो बहुत इजी है। दे ऑलरेडी नो इट, दे गूगल इट। लेकिन जिनको पता नहीं है कि नी आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का रोल होता है और एक्सरसाइजेस सही सीख कर करने से बहुत फायदा होता है, तो वही चैलेंज है। तो उसके लिए आप अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, है ना। अगर पॉसिबल हो तो आप ऑन फील्ड कर सकते हैं, कैंप्स कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। नहीं है तो ऑनलाइन है ही। तो आप देखिए कि कैसे आप नेटवर्क बनाएंगे, वहां के डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई नियर बाय विलेज है जो नेटिव है या समथिंग, तो वहां पे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप प्रपोजिशन सेट कर सकते हैं। जैसे हमने अब्दुल्लागंज जो भोपाल के आसपास का है एरिया, वो भी कवर किया हुआ है, मंडीदीप। तो यहाँ पे उनकी हेल्प से यू हैव टू रीच आउट टू देम। ओके मैम, ओके या ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम ये डॉक्टर्स मतलब हमें हेल्प करते हैं रिगार्डिंग दिस? व्हाई नॉट? अगर डॉक्टर्स खुद समझदार है, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा पेशेंट बेटर हो सकता है फिजियोथेरेपी की मदद से, और इस तरीके से वो रीच आउट कर सकता है, सो व्हाई नॉट? ओके, You'll find all type of people, but try करना पड़ेगा, ट्रू। right? Okay, then we are ending this session. Thank you, Dr. Anuma, for sharing your Thank you so expertise. much. Thank you, everyone. Take care, and of course, you can connect with me on my Yeah. profile. So we'll try to help you out. Thank you. I will share your social Yeah, media LinkedIn. handles on the And group. absolutely, and the websites also. Thank you. Take care. Bye. Thank you, everyone, for joining the session. Yeah. See you in the next session. Bye bye. Thank you, ma'am.